السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج کی آن لائن کلاسز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ بچوں، یہاں پر آپ کو ہمارے ملک ہندوستان کا نقشہ دکھائی دے رہا ہے نا طلباء؟ تو میرے عزیز بچوں، ہم ہندوستان کو ایک جزیرے نما بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ ہندوستان کو ہم جزیرے نما کہتے ہیں یا بر صغیر بھی کہتے ہیں۔ تو بچوں، آپ بتا سکتے ہیں ہندوستان کو جزیرے نما کیوں کہتے ہیں؟ یا جزیرے نما سے کیا مراد ہے نا؟ ہم ہندوستان کو کیا کہتے ہیں؟ ہندوستان ہمارا ایک جزیرے نما ہے کہتے ہیں۔ کیوں بچوں؟ چلے کوئی بات نہیں، یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے ہندوستان کو ہم جزیرے نما کیوں کہتے ہیں، ایک بر صغیر کہلاتا ہے، تو اس کو جاننے کے لیے آج ہم جماعت ہشتم کے بعد تاریخ کا باب، کون سا باب بچوں آپ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، جغرافیائی خصوصیات اور ماقبل تاریخ ہندوستان کے جغرافیائی خصوصیات اور ماقبل تاریخ ہندوستان کے بارے میں پڑھیں گے، ہے نا؟ تو بچوں، ہندوستان ایک بر صغیر ہے، یعنی ایک چھوٹا بر اعظم اس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہر قسم کی آب ہوا، نباتات، جنگلات، مٹی کی قسم اور ہر ذات، رنگ و نسل کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ہے نا؟ تو بچوں، ہمارا ہندوستان بر اعظم ایشیا کے جنوب کے ایک بڑے حصے پر واقع ایک جزیرے نما ہے۔ جزیرے نما کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تین طرف جو ہے پانی سے گھرا ہوا ہے اور ایک جانب جو ہے اس کا زمینی حصہ، جیسا کہ بچوں آپ کو یہاں پہ میپ میں دکھائی دے رہا ہے، جو نیلا نیلا کلر ہے نا بچوں، کیا ہے؟ پانی کا حصہ ہے نا؟ تو تینوں طرف دیکھو، ایک طرف مشرق میں اس کے خلیج بنگال ہے، تو مغرب میں بحر عرب ہے اور جنوب میں بحر ہند ہے، تو تین طرف پانی سے گھرا ہوا ہے۔ تو اسی لیے بچوں ہم ہندوستان کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ہندوستان کیا ہے؟ ایک جزیرے نما ہے، دنیا کے سب سے بڑے بر اعظم ایشیا میں واقع ایک جزیرے نما ہے۔ تو اس جزیرے نما، اس ہمارے ملک ہندوستان کا کل رقبہ کتنا ہے بچوں؟ 32,87,263 مربع کلومیٹر ہے نا؟ اب دوسرا نقشہ بھی آپ کے سامنے ڈالی، جو بلو لائن ہے نا وہ پورا کیا ہے؟ اس کا آبی حصہ ہے، اوپر جو ریڈ کلر ہے نا لال سرخ رنگ میں، وہ اس کا زمینی حصہ ہے۔ تو دیکھیے تینوں طرف جو ہے وہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ تو ہمارا ہندوستان 8.4 درجے عرض بلد سے لے کر 37.6 درجے عرض بلد کے درمیان میں پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح سے 68.7 درجے طول بلد سے لے کر 97.25 درجے طول بلد کے درمیان میں پھیلا ہوا ہے نا؟ تو بچے اس کا کل رقبہ کتنا ہے؟ ہمارے ہندوستان کا کل رقبہ 32,87,263 مربع کلومیٹر ہے۔ سمجھ میں؟ 32,87,263 مربع کلومیٹر ہے۔ تو یہاں پہ دکھائی کہ میں بہت سے عرض بلد اور طول بلد ہمارے ہندوستان سے گزرے ہیں۔ تو بچے یہاں پہ دیکھو، ہندوستان کے درمیان سے جو اہم عرض بلد گزر رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خط سرطان کہتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہماری کلاس میں ہم تمام عرض البلاد اور طول البلاد کے بارے میں پڑھے ہیں نا؟ تو ہندوستان کے درمیان سے گزرنے والا اہم عرض بلد جو کہ ہندوستان کو تقریباً 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خط سرطان کہتے ہیں۔ اسی طرح سے 82.5 درجے کا جو مشرقی طول بلد گزرا ہے وہ ہندوستان کے معیاری وقت کا طول بلد کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہمارا ہندوستان 32,87,263 مربع کلومیٹر کا ہندوستان ہے، تو اس کی شرقاً غرباً یعنی مشرق سے مغرب تک اس کی چوڑائی 2,933 کلومیٹر، تو اسی طرح سے شمال سے جنوب تک اس کی لمبائی 3,214 کلومیٹر ہے۔ سمجھ میں آیا بچہ؟ کل رقبہ 32,87,263 مربع کلومیٹر، تو مشرق سے مغرب تک اس کی چوڑائی 2,933 کلومیٹر، شمال سے جنوب تک اس کی لمبائی 3,214 کلومیٹر ہے نا؟ اس کے درمیان سے گزرنے والا اہم عرض بلد کون سا بچوں؟ خط سرطان، یعنی 23.5 درجے شمالی عرض بلد جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خط سرطان، وہ ہمارے ہندوستان کے درمیان سے گزرتا ہے۔
उसी तरह से 82.5 दर्जे मशरकी तूले बलद जो कि शहर अलाहाबाद से गुजरता है, वो हमारे हिंदुस्तान के मियारी वक्त का तूले बलद है ना। मुकामी वक्त, मियारी वक्त पढ़े हैं हम। तो पूरे मुल्क के लिए जो वक्त तस्लीम किया जाता है जिस तूले बलद का, उसको हम क्या कहते हैं, उस मुल्क का मियारी तूले बलद कहते हैं। तो 82.5 दर्जे मशरकी तूले बलद हिंदुस्तान के मियारी वक्त का तूले बलद है। तो समझ में आ रहा है बच्चों इतना, है ना। तो उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान को ऊपर जो है बहुत से सरहदी ममालिक लगे हुए हैं और नीचे जो है जुनूब में उसके श्रीलंका भी है। तो बच्चों यहाँ पे मैप में आपको दिखाई दे रहा है ना, कौन कौन से हमारे हिंदुस्तान के सरहदी पड़ोसी ममालिक कौन कौन से हमारे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, ये तमाम हमारे क्या है पड़ोसी ममालिक। उसी तरह जुनूब में जो है श्रीलंका है। तो बच्चों हमारे हिंदुस्तान में कुल 29 रियासतें, 7 मरकजी इलाके और दिल्ली इसका सदर मुकाम है। तो फिर लास्ट ईयर देखो, ये जो है हमारी प्रीवियस यानी 2 साल पहले की किताब है, इसीलिए हमारे किताब में बच्चों क्या दिया गया है, हमारी कुल रियासतों की तादाद 29 रियासतें, 7 मरकजी इलाके और दिल्ली को सदर मुकाम के तौर पर। अभी फिलहाल में लास्ट ईयर क्या हो गया है, जम्मू और कश्मीर में से लद्दाख का वजूद हुआ है, जो दोनों भी जो है मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके यानी जहां पर मरकजी हुकूमत का इंतजामिया चलता रहता है। तो अब 28 रियासतें और यहाँ पे 8 मरकजी इलाके प्लस दिल्ली एक हमारा सदर मुकाम जो क्या है वो भी मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका ही है या रियासत ही है। तो समझ में है बच्चों, हमारी किताब कंफ्यूज मत कर लीजिए, हमारी किताब में कितने दिए गए हैं, 29 रियासतें और 7 मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके और दिल्ली सदर मुकाम दिया गया। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये हमारे सियासी तकसीम कहते हैं ना। ये मुल्क की क्या कहलाती है बच्चों, सियासी तकसीम, है ना। सियासत के लिहाज से, इंतजामिया के लिहाज से, हुकूमत के लिहाज से। जो देखो अब मैप में आपको नक्शा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे सॉरी वीडियो में जो नक्शा या मैप दिखाई दे रहा है ना, ये जो तकसीम है ये हमारी किताब के 29 रियासतों के लिहाज से है ना। जम्मू कश्मीर है ना, राजस्थान, पंजाब, हमारी रियासत कर्नाटक, पड़ोसी रियासतें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, ये तमाम क्या है बच्चों हमारी 29 रियासतें और इसमें मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके भी हैं, है ना। अभी जो है 28 रियासतें, 8 मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके और दिल्ली हमारा सदर मुकाम है। तो ये जो अभी यहाँ पे मैं रियासतों की तादाद लिखी हूँ वो आपकी किताब में जो 29 रियासतें हैं ना उसके लिहाज से है। फिर किताब में अब ये भी याद रखिए हाँ कि अभी रियासतों की जो है तादाद बदल गई है ना। तो ये तमाम जो है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर से लद्दाख जो है मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका बन गया है, झारखंड, कर्नाटक हमारी रियासत, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, ये तमाम क्या है हमारे रियासतें। उसी तरह से मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में जज़ायर अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दीव दमन, लक्षद्वीप और हमारा सदर मुकाम जो है दिल्ली, पांडिचेरी, ये हमारे क्या है मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके हैं। तो सभी को आप बच्चों याद करो, नक्शे में उनकी निशानदेही कहाँ कहाँ आती है ये भी देखते चले जाए। तो बच्चों ये क्या थी हमारे हिंदुस्तान की सियासी तकसीम थी, यानी 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर का दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क जो हमारा हिंदुस्तान है उसकी सियासी तकसीम थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों। फिर अभी हम जोग्राफियाई तकसीम देखना है ना। तो उससे पहले मैं आपको 1-2-4 सवालात पूछूं। एक महफिल में जाएंगे सवालात और जवाबात की महफिल में, यहाँ पे चंद एक सवालात पूछती हूँ, आप जवाबात देते चले जाइए, देखेंगे कितना आपको समझ में आया है। अगर जवाबात नहीं मिले तो फिर इसको रिवीजन करते हुए मैं आगे चले जाऊंगी। तो चलो बच्चों आप रेडी है ना बच्चों। चलो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन, हिंदुस्तान कौन से बराज़म में वाक़ है। चलो डियर स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी कमेंट में अपना जवाब लिखिए, हिंदुस्तान कौन से बराज़म में वाक़ है। माशाल्लाह सही जवाब, हिंदुस्तान बराज़म एशिया में वाक़ है। उसी तरह से आप दूसरा सवाल दे दूं आपके लिए, ये रहा, हिंदुस्तान का कुल रकबा कितना है। हिंदुस्तान का कुल रकबा कितना है। माशाल्लाह हिंदुस्तान का कुल रकबा
32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर। हिंदुस्तान का कुल रकबा कितना है बच्चों? 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपके लिए तीसरा सवाल। हिंदुस्तान के कोई दो पड़ोसी ममालिक के नाम लिखिए, है ना। सरहदी ममालिक भी बोलिए, उसी तरह श्रीलंका भी है ना। हिंदुस्तान के जुनूब में बहरे इनके पास में। चलो एक तो मैं बोल ही दिया ऐसा आपको एक्सप्लेन करते करते, फिर भी कोई बात नहीं। हिंदुस्तान के कोई दो पड़ोसी ममालिक के नाम लिखिए या नाम बताइए। माशाल्लाह, पाकिस्तान सही जवाब, अफगानिस्तान ये भी सही, बांग्लादेश है ना, चीन, तिब्बत, नेपाल, ये तमाम क्या है हमारे पड़ोसी ममालिक है। माशाल्लाह। चलिए अगले सवाल की तरफ। हिंदुस्तान के जुनूब में कौन सा मुल्क वाक़ है? गौर से मेरी बात सुने रहे तो अभी जवाब जल्दी से निकलेगा, है ना। ऑलरेडी बोल दी हूं मैं। माशाल्लाह। हिंदुस्तान के जुनूब में कौन सा मुल्क है? श्रीलंका, है ना, जिसको आबनाए पाक हिंदुस्तान से जुदा करता है। हिंदुस्तान के जुनूब में एक जजीरे जैसा मुल्क कौन सा है? श्रीलंका है। चलिए एक लास्ट आखिरी सवाल आपके लिए। हिंदुस्तान का सदर मुकाम कौन सा है? हमारे मुल्क का सदर मुकाम कौन सा है? माशाल्लाह, जल्दी जवाब है। हमारा सदर मुकाम दिल्ली है। उसी तरह कर्नाटक का सदर मुकाम बेंगलुरु है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों ये क्या थी? हमारी सियासी तकसीम थी। चलिए अब हम हिंदुस्तान की जोग्राफियाई तकसीम देखेंगे, है ना। किस तरह से जोग्राफियाई लिहाज से, सियासी लिहाज से इसको जैसा 29 रियासतें, 7 मरकजी जेर इंतजाम इलाका, दिल्ली हमारा सदर मुकाम, इस तरह से जो इंतजामी लिहाज से जो तकसीम है वो हमारी सियासी तकसीम थी। अब जो है हम हिंदुस्तान की जोग्राफियाई तकसीम देखेंगे, है ना। हिंदुस्तान की जोग्राफियाई तकसीम देखो किस तरह से, ये जो दिख रहा है हिंदुस्तान की जोग्राफियाई तकसीम का नक्शा है ना। हिंदुस्तान का तबई जोग्राफिया इसको कहते हैं या जोग्राफियाई तकसीम। तो तबई जोग्राफिया के लिहाज से हिंदुस्तान को हम 4 बड़े हिस्सों में तकसीम करे हैं। तबई जोग्राफिया के लिहाज से हिंदुस्तान को हम बच्चों 4 हिस्सों में तकसीम करे हैं। ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है हिमालय का पहाड़ी सिलसिला या उसको हम शुमाली हिंद के पहाड़ियां भी कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो आता है, चलो एक एक देखो, एक कौन सा है? हिमालय का या पहाड़ी सिलसिला या शुमाली हिंदुस्तान के अजीम पहाड़। नक्शे पे भी गौर कीजिए और मेरी आवाज भी सुनते रहिए गौर से। देखो अब दूसरा हिस्सा जो है ये शुमाल के अजीम मैदान या इसको हम गंगा के जरखीज मैदान भी कहते हैं। उसी तरह से अब एक तीसरा हिस्सा जो मुसल्लस नुमा है ना, कमोबेश मुसल्लस नुमा जैसा है। मुसल्लस की एग्जैक्टली तो नहीं है बट देखने के लिए फिगर हमें कैसा दिखा है कि एक मुसल्लस की शक्ल में। तो एक है जजीरे नुमा हिंद की सतह मुर्तफा कहते हैं उसको। और आखिरी जो हिस्सा है साहिली मैदान और जजायर है ना बच्चों। तो एक क्या है? हिंदुस्तान का तबई जोग्राफिया, है ना। यहाँ पर भी देखो इस नक्शे में भी आपको समझ में आएगा। पहला हिस्सा हिमालय का पहाड़ी सिलसिला या शुमाली हिंदुस्तान के अजीम पहाड़, दूसरा शुमाली हिंदुस्तान के अजीम मैदान या इसको गंगा के जरखीज मैदान भी कहते हैं, तीसरा जजीरे नुमा हिंद की सतह मुर्तफा और चौथा जो है साहिली मैदान और जजायर। तो पहला कौन सा है बच्चों? हिमालय का पहाड़ी सिलसिला। ये बर्फानी पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ पर बुलंद है जिस तरह आपको यहाँ पे दिखाए बुलंद पहाड़ी चोटियां हैं, जिसमें हमारे हिंदुस्तान की बुलंद चोटी गॉडविन ऑस्टिन, दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट है। कई यहाँ पे दर्रे हैं, है ना, कई सेहत अफजा मुकामात है। ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। हिमालय का जो पहाड़ी सिलसिला है हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। ये हमारे हिंदुस्तान की एक कुदरती फसील की तरह है, एक दीवार की मानिंद खड़ा हुआ है जो कि हमें पड़ोसी ममालिकों के हमलों से हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहा है। तो हिंदुस्तान के लिए हिमालय क्या है? कुदरती फसील है, खुदा की जानिब से ही अता की हुई हमारे लिए हिफाजती दीवार है। ये हिमालय हिंदुस्तान की कुदरती फसील है। उसी तरह से बच्चों ये वस्त एशिया से चलने वाली सर्द हवाओं को रोकता है ना। दरमियान में हायल होने की वजह से जो वापस पलटने वाले वस्त एशिया से चलने वाली जो सर्द हवाएं रहते उन सर्द हवाओं को भी हिंदुस्तान में दाखिल होने से रोकता है। और हिमालयी सिलसिले तूफानी हवाओं को रोककर शदीद बारिश बरसाते हैं, जिसकी वजह से वहां से जो है दौमी दरिया निकलते हैं जो हमारी ज़राअत के लिए आबी बरक़ क़ुव्वत पैदा करने के लिए बहुत ही मौजू है ना, बहुत ही फायदेमंद है। तो हिंदुस्तान की कुदरती फसील है,
वस्त एशिया से चलने वाली सर्द हवाओं को रोकता है। हिमालय सिलसिले तूफानी हवाओं को रोककर शदीद बारिश बरसाते हैं। इनके ढलवानों पर घने जंगलात भी पाए जाते हैं, सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। बहुत से घनी वादियां भी हैं जहां पर बहुत से फलों फूलों के वहां पे बागात भी हैं। यानी बागाती फसलों के लिए एक बेहतरीन नमूना क्या हिमालय के पहाड़ी सिलसिले हैं। और मादनियाती जखायर से भी माला माल है। कई आबशार और नदियों का मुंबा है। और नदियां जो है यहाँ पे दामी दरिया होने की वजह से, हमेशा बहने वाली नदियां होने की वजह से आबी बरक़े कुव्वत की भी फरावानी होती है। तो बच्चों इस तरह से हिमालय का पहाड़ी सिलसिला हमारी जिंदगियों में बहुत ही अहमियत रखता है ना। तो ये था ज्योग्राफियाई लिहाज से पहला हिस्सा। उसी तरह से ज्योग्राफियाई लिहाज से दूसरा हिस्सा जो है शुमाली हिंदुस्तान के अजीम मैदान या इस दरिया से मतलब है दरियाई गंगा से बने हुए मैदानी इलाकों को हम क्या कहते हैं? शुमाली हिंदुस्तान के अजीम मैदान कहते हैं या गंगा के जरखीज मैदान भी इसको कहते हैं, है ना बच्चा। तो शुमाली हिंदुस्तान के अजीम मैदान ये कहाँ पे है? जिस तरह आपको यहाँ पे मैप में जो ब्लू कलर में अब दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? गंगा का जरखीज मैदानी इलाका या गंगा का अजीम मैदानी इलाका भी कहते हैं या शुमाली हिंदुस्तान के अजीम मैदान भी इसको कहते हैं, जो कि तकरीबन ये कहाँ पे है? हिमालय और जजीरे नुमा हिंद की सतह मुर्तफा के दरमियान में ये वाक़ है ना। तो तकरीबन 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर से घिरे हुए ये दरियाई सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जखीरा अंदोजी से तश्कील पाए हुए दुनिया के सबसे बड़े सैलाबी मैदान है ना। गंगा के जरखीज मैदान जो है तीन नदियों के दरियाई सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जखीरा अंदोजी के निजाम से तश्कील पाए हुए दुनिया के सबसे बड़े सैलाबी मैदान है ना। ये अपने साथ क्या करते हैं? जब सैलाब या तूफान आते हैं तो दरिया क्या होता है? फैल जाता है ना। फिर उसके बाद में सैलाब का असर कम होता है तो फिर असली जगह चले जाता है, लेकिन वहां पे जो है चिकनी मिट्टी की पर जमा होकर जरखीज मैदान बन रहे हैं। तो वो क्या है? शुमाली हिंदुस्तान के अजीम मैदान है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको दरियाई सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों के जखीरा अंदोजी से तश्कील पाए हुए दुनिया के सबसे बड़े सैलाबी मैदान है। तकरीबन 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर के इहाते में घिरे हुए हैं, जिनकी लंबाई 2500 किलोमीटर तो औसतन चौड़ाई कहीं पे 240 किलोमीटर है तो कहीं पर 340 किलोमीटर है। ये बहुत ही जरखीज है, इसीलिए जो है ज़राअत के लिए भी मौजू है और अंदरूनी जहाजरानी भी यहाँ पे आसानी से की जाती है। तो बच्चों ये क्या था? शुमाली हिंद के अजीम मैदान, जिसको हम गंगा के जरखीज मैदान भी कहते हैं। दूसरा हिस्सा था ज्योग्राफियाई लिहाज से हिंदुस्तान का दूसरा हिस्सा। उसी तरह से अब तीसरा हिस्सा जो है एक कहलाता है जजीरे नुमा हिंद की सतह मुर्तफा, जो कि कोहे अरावली, कोहे विंध्याचल, सतपड़ा, सतह मुर्तफा, छोटा नागपुर, मशरकी घाट, मगरबी घाट है ना। ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रही ना, मशरक की सिमत जो है वो मशरकी घाट, उसी तरह मगरिब की सिमत में जाती है बच्चों मगरबी घाट कहलाती है। हम जो रहते हैं वो सतह मुर्तफा दक्कन का इलाका है ना, जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां पर भी बहुत सी ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं। जिस तरह मैप में आपको दिख रहा है कोहे अरावली की सबसे बुलंद चोटी गुरु शिखर, उसी तरह से जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बुलंद चोटी अनायमिस्ट्री है ना, अमद कोंडा। ये तमाम क्या है? हिंदुस्तान के सतह मुर्तफा में आने वाले पहाड़ी सिलसिले या अहम यहाँ की चोटियां हैं, जो कि मादनिया से घिरा हुआ है। इसकी मौशी अहमियत भी है ना। उसी तरह से अब ये जो दिख रहा है ये साहिली, चौथा हिस्सा साहिली मैदान और जजायर है, यानी जजीरे नुमा हिंद की सतह मुर्तफा अब जो पड़े हैं मुसल्लस नुमा, इसके दोनों जानिब यानी मगरिबी घाट और मशरकी घाट जो पड़े, इसके बाहर का जो इलाका है वो क्या कहलाता है बच्चों? मशरिक की सिमत जो है वो मशरकी साहिली मैदान, मगरिब की सिमत में जो है वो मगरबी साहिली मैदान कहते हैं ना। तो मगरबी साहिली मैदान को फिर से हम 3 हिस्सों में जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, पहले पॉइंट के ऊपरी हिस्सा जो है ये मगरबी घाट जो है ये बहरे अरब के दरमियान, मगरबी घाट और बहरे अरब के दरमियान का जो इलाका है वो मगरबी साहिली मैदान कहलाता है, जो कि कच्छ से लेकर कन्याकुमारी, जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना वो है ना, कच्छ से लेकर जो है यहाँ पे गुजरात के कच्छ से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक जो है फैला हुआ। इसको हम फिर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले पॉइंट का ऊपरी हिस्सा जो है उसको हम
कोंकण का साहिल या साहिल कोंकण कहते हैं। ये दोनों के दरमियान का अब जो हिस्सा दिख रहा है वो कर्नाटक का साहिल कहलाता है और नीचे का हिस्सा जो है वो साहिल मलाबार। उसी तरह से मशरकी साहिली मैदान को येलो पॉइंट से नीचे का जो है वो कोरोमंडल का साहिल कहते हैं, ऊपर का जो है वो सरकार साहिल या अटकल मैदान कहलाता है ना। तो ये साहिली मैदान और उसके साथ साथ जो है लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार के जजायर भी बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो ये मशरिक की सिमत जो है वो मशरकी साहिली मैदान, मगरिब की सिमत जो दिखाया गया है वो मगरबी साहिली मैदान। मगरबी साहिली मैदान को हम 3 हिस्सों में कोंकण का साहिल, कर्नाटक का साहिल और मलाबार का साहिल, और उसी तरह मशरकी साहिली मैदान को कोरोमंडल का साहिल या उसको ऊपर हिस्सा जो है सरकार साहिल या उसको अटकल मैदान भी कहते। उसी तरह से यहाँ पे जो है जजायर भी पाए जाते हैं और इनके साहिली मैदानों पर जो है बहुत सी बंदरगाहें हैं। मैं यहाँ पे स्टार मार्क में रखी देखो, मशरकी साहिल की बंदरगाहें और मगरबी साहिल की बंदरगाहें है ना। मशरकी साहिल की बंदरगाह में कांडला की बंदरगाह, मुंबई की बंदरगाह, मारम गोवा, मैंगलोर, कोचीन, टिटिकोरिन, उसी तरह से चेन्नई, एनोरे और विशाखापट्टनम, प्रदीप, हल्दिया की बंदरगाह, ये तमाम क्या है यहाँ की अहम बंदरगाहें हैं। तो ये साहिली मैदान और ये जजायर जो है ये भी बहुत ही अहमियत रखते हैं क्योंकि यहाँ पे माहीगिरी होती है, जहाजसाजी होती है, नमक की पैदावार होती है और ये सयाहों की तफरीह का भी मरकज बने हुए हैं। तो बच्चों यहाँ तक जो 4 हिस्से पड़े वो हिंदुस्तान की जोग्राफियाई तकसीम है ना। पहला हिमालय का पहाड़ी सिलसिला, दूसरा गंगा का जरखीज मैदान, तीसरा जजीरे नुमा हिंद की सतह मुर्तफा, चौथा जो है साहिली मैदान और जजायर। ये जो 4 हिस्सों में हिंदुस्तान को तकसीम किया गया है जोग्राफियाई लिहाज से, इसको हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तान की तबाई तकसीम या हिंदुस्तान की जोग्राफियाई तकसीम। और रियासतों की जो तकसीम थी वो सियासी तकसीम। अब ये जो 4 हिस्सों में हम तकसीम किए हैं ये क्या कहलाती है, जोग्राफियाई तकसीम कहलाती है। तो उसी तरह से इस बाब का दूसरा हिस्सा है बच्चों, पहला हिस्सा क्या है, हिंदुस्तान की जोग्राफियाई तकसीम, और एक हिस्सा है यहाँ पे माक़बल तारीख हिंदुस्तान। तो माक़बल तारीख हिंदुस्तान किसको कहते हैं या माक़बल तारीख जमाना किसको कहते हैं करके, ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ना, ये पुराने जमाने के लोग हैं जो कि कुदरत के दामन में रहते थे, गारों में रहते थे है ना। इनके पास कोई रहने के लिए घर नहीं था, ये दरख्तों के पत्ते पहना करते थे। तो इस जमाने को हम क्या कहते हैं बच्चों, माक़बल तारीख जमाना कहते हैं या माक़बल तारीख अहद कहते हैं। यानी बच्चों रस्मुल खत के वजूद में आने से पहले वाले जमाने को हम माक़बल तारीख जमाना कहते हैं। यानी वो जमाना जिसके कोई तहरीरी शवाहिद मौजूद ना हो, कोई रिटर्न में लिखा हुआ यहाँ हमारे पास नहीं हो, कोई जराए हमारे पास सबूत के तौर पर ना हो, यानी लिखावट अभी लोग नहीं जानते थे कि वहाँ के हालात जिंदगी को, वहाँ के इंतजामिया को, वहाँ के मुआशी हालात को लिख के रख सके, जिसके जरे मौरखीन तारीख लिख सके, ऐसा कुछ भी उस जमाने में नहीं था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि माक़बल तारीख जमाना वो जमाना है जिसके कोई तहरीरी शवाहिद मौजूद नहीं है या रस्मुल खत के वजूद में आने से पहले वाले जमाने को हम माक़बल तारीख जमाना कहते हैं। यानी माक़बल तारीख जमाने की कोई यादगारें, तारीखी यादगारें नहीं मिलती या जुबान की अलामत या तहरीरी तरक्की को हमें बता दे, इस तरह के कोई तहरीरी सबूत हमें नहीं मिलते। इसीलिए उस जमाने को हम क्या कहते हैं बच्चों, माक़बल तारीख जमाना, यानी तारीख के लिखने से पहले का जमाना, कि उसकी कोई तारीख यहाँ पे मौजूद नहीं है। चंद एक जो है यहाँ पे ढांचे, हड्डियां वगैरह पता चलते तो उससे हम अखज़ कर सकते हैं खुदाई के दौरान जो मिलते हैं कि हाँ इंसान इस तरह से जिंदगी बसर करता होगा, लेकिन तहरीर में लिखे हुए कोई हमारे पास शवाहिद मौजूद नहीं है। तो माक़बल तारीख जमाने का इंसान जो है खाना बदोश था। खाना का मतलब होता है घर, दोष यानी कंधा, अपने घर को अपने कंधे पे लेकर घूमने वाला, मतलब गिजा की तलाश में या जानवरों के चरवाई के लिए वही एक जगह से दूसरी जगह जो है सफर करते रहते थे। उनका घर उनके दोष पे, उनके खांधे पे होता था, यानी परमानेंटली उनका एक हमारे जैसा एक घर नहीं होता था। एक जगह पर डेरा डाले, जब तक उन्हें वहां पे फल या दरख्तों के पत्ते या जंगली जानवर खाने के लिए मिलते थे वहां पे रहते थे। फिर वो इलाके में खत्म हो गए, फिर दूसरे इलाके को वो हिजरत कर देते, यानी वहां से वो मुंतकल होते थे, चले जाते थे। तो इसलिए वो कैसी जिंदगी गुजारते थे बच्चों, खाना बदोश जिंदगी कहते हैं। तो माक़बल तारीख जमाने में आदमी कैसी जिंदगी गुजारता था, खाना बदोश,
शिकार करके अपनी जिंदगी गुजारता था, ना उसे ज़राअत का तरीका मालूम था, ना ही कोई उसे दूसरे पेशे मालूम थे। तो अपनी गिज़ा को जो है शिकार कर करके इकट्ठा करता था, फिर वही जानवरों को कच्चा गोश्त ही खाया करता था। आग की भी उस जमाने में दरियाफत नहीं हुई थी, बाद के जमाने में आग की दरियाफत हो गई है ना। तो जानवरों का कच्चा गोश्त या दरख्तों के पत्ते खाया करता था, या जो जंगली फल मिलते थे फल फूल खाया करता था। तो कुदरत के दामन में, गारों में या दरख्तों की खोखलों में इस तरह से वो खाना बदोश की जिंदगी गुजारते थे। कौन? माक़बल तारीख जमाने के इंसान। फिर उसी तरह से जमाना तरक्की करते गया तो उनमें भी तब्दीली आते चली गई। तो इस दौर के लोग जो है लकड़ियों, पत्थरों और हड्डियों से बने हुए हथियार इस्तेमाल करते थे। यानी चंदे खुदाई के दौरान में जो है इस तरह के पत्थर या हथियार मिल गए हैं एक जराए के तौर पर कि हम अखज़ कर सकते हैं कि हाँ, इस तरह से वो जानवरों का शिकार करने के लिए इन पत्थरों को नोक के लिए बनाकर इस्तेमाल करने, दूर से इस तरह से फेंकना उस जानवर को, शिकार करना, फिर उसका कच्चा गोश्त खा जाना। तो इस तरह की जिंदगी बच्चों वो बसर करते थे। कौन? माक़बल तारीख जमाने के लोग। फिर उसी तरह से जो है माक़बल तारीख जमाने के इंसान पत्थरों के जरिए से जानवरों की खाल भी निकालते थे। गोश्त और हड्डियों का अलहदा करने के लिए भी यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना पत्थर, इस तरह से नोक के लिए बना कर लेते थे, या दरख्तों की छाल निकालने के लिए, फल और दरख्तों की जड़ी बूटियों के लिए लोग क्या करते थे? पत्थर और हड्डियों के औजार बनाते थे, है ना। वो जो दिख रहे हैं या तो पत्थर के औजार होते थे वो, या हड्डियां जो जानवरों का शिकार करते थे, गोश्त खा जाते थे, उनकी हड्डियों को नोक के लिए बनाकर, फिर या तो जो है दरख्तों की छाल निकाल कर खाने के लिए, या जानवरों की खाल को शिकार करने के बाद उस खाल को अलग करने के लिए, या गोश्त और हड्डियों को अलहदा करने के लिए पत्थर और हड्डियों के औजार बनाकर उसको निकाले करते थे। यानी उनके में उतनी तहजीब नहीं थी। वो इसी तरह से जहां पर उन्हें जिंदगी जीने की तमाम चीजें मिल जाते हैं, यानी मवेशियों के लिए चारा मिल जाए, उन्हें खाने के लिए वहां पे फल फूल मिल जाए, या दरख्तों के पत्ते खाने के मुनासिब हो, या जंगली जानवर वहां पर पाए जाते, तो जिस तरह तस्वीर में दिखाई दे इसी तरह से वो शक्लों में यानी खाना बदोशी की जिंदगी, टेम्पररी एक घर बनाकर वो रहते थे। तो इसी जगह को वो क्या कहते थे? सनती इलाके। जिस तरह अब हम बोलते हैं ना सनती इलाका या सनती खित्ता करके पढ़ते हैं हम ज्योग्राफिया में, यानी जहां पर तमाम सनतें एक जगह मरकूज हुआ हम उसको सनती इलाके कहते थे। तो उस जमाने के बेचारों की सनतें यही थी, पेशा ही यही था। तो माक़बल तारीख जमाने का इंसान ऐसे मुकामात का इंतखाब करता था जहां उनको उनकी जरूरियात पूरी हो सके, अपनी गिजा को पूरा करने के लिए, जहां वो अपने हथियार भी बनाते थे, वहां पे मवेशी भी चरते रहना, वहां पे जंगली जानवर भी रहना, जंगली फूल और फल उनको मिलते रहना। तो वहां पर वो ऐसे मुकाम का इंतखाब करके चंद दिनों के लिए वो रहा करते थे। और इन्हीं इलाकों को वो क्या कहते थे? सनती इलाके। इन इलाकों को क्या कहते थे? वो सनती इलाके कहते थे, है ना। तो यानी सनती इलाका यानी क्या? एक लंबे अरसे तक इंसान अपनी जिंदगी गुजारी हो ऐसे रिहायशी इलाकों को सनती इलाका कहा जाता था। यानी एक लंबे अरसे तक यानी बहुत दिनों तक वहां पर इंसान जिंदगी गुजारी हो तो ऐसे इलाकों को क्या कहते थे बच्चों? सनती इलाका कहते थे, है ना। जिस तरह आपको तस्वीर में दिखाई देना, यानी उनकी जरूरत उस जमाने की, उनकी हमारे जैसे बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं थे बेचारों की, लिमिटेड जिंदगी, जानवरों का शिकार करना, दरख्तों के पत्ते पहनना, वही कच्चा गोश्त खाना, फिर वही दरख्तों के फल फूल या दरख्तों की छाल को वो लोग खाया करते थे। तो ऐसे ही जगह को वो क्या नाम देते? सनती इलाके। यानी एक लंबे अरसे तक इंसान ने जहां पर जिंदगी गुजारी हो ऐसे रिहायशी इलाकों को क्या कहते थे बच्चों? सनती इलाके कहते थे। यानी सिंपल में जिंदगी गुजार, फिर अचानक क्या होगा? आग की दरियाफत हो जाती है ना। आग दरियाफत करते, तो वो लोग आग दरियाफत कर रहे हैं करके हमें किस तरह पता चलता है कि करनूल के जो गारों में जो है राख का पता चलता है। वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि पत्थर के जमाने का इंसान आग जानता था, यानी गालिबन वो आग का इस्तेमाल जो है खाना पकाने के लिए, रोशनी और जानवरों की हिफाजत के लिए भी किया हो। तो उसी तरह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के गारों में नक्श निगारी भी देखी जाती है, जिसमें जंगली जानवर और शिकार किए हुए मनाजिर को हमें देखने मिलते हैं। तो उससे हम इस बात का भी पता लगा लेते हैं कि पत्थर के जमाने के लोग पत्थरों पर नक्शो निगारी भी कर रहे थे। तो आग का इस्तेमाल भी जो है अचानक ही हो जाता है। उन्हें कहा जाता है कि एक मर्तबा जो है जंगल में जोर से हवाओं चलने से रगड़ की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे आग लग गई, पूरे जंगल को आग लग गई। तो थोड़ी देर के बाद जब वो आग मिट जाती है तो देखते हैं कि वहां पे रहने वाले इंसान तो भाग कर चले गए, जो जानवर थे वो जलकर बुनकर क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं या राख भी हो जाते हैं।
तो वो गोश्त क्या होता है, उनको मजेदार लगता है, वो भुना हुआ गोश्त मजेदार लगता है। फिर उसके बाद वो पत्थरों को रगड़ कर क्या करते थे, उस रगड़ के जरिए से आग सिलगाया करते थे। फिर उस आग में जो है जानवरों को भून कर खाने लगे। तो इस तरह से वो आग की भी दरियाफ्त हो गई, यानी कच्चा गोश्त खाने वाला इंसान अभी उस गोश्त को उस आग के जरिए से भून कर खाने लगा। फिर वो जो है एक जगह पर वो रहने लगा, यानी माहौल अभी क्या होगा, बदलते चला गया, है ना। पहले की तस्वीर देखो, अब की तस्वीर देखो, यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, किस तरह माहौल बदला है। देखो लोग अलग अलग पेशे करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरह से कहा जाता है कि 12,000 साल से पहले दुनिया में एक जबरदस्त इनकलाब आया, तो इस रोए जमीन पर गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। तो गर्मी के ज्यादा होने से जो घास के मैदान के रिहायशी इलाकों में वो तब्दील हो गए, जो घास के मैदान थे वहां रिहायशी इलाकों में तब्दील हो गए। तो वहां पे लातादाद जानवर परिंदे भी बढ़ने लगे, जंगली जानवर, बारहसिंगा, बकरियां, दुम्बे वगैरह सभी इन घास के मैदानों में चरकर खूब जो है वहां पे तरोताजा बन गए। तो इस तरह जानवरों की परवरिश का सिलसिला शुरू हुआ। जब जानवरों की मवेशी पालन करने लगे, फिर इन मवेशी पालन से दूध दोहना या डेयरी फार्मिंग जिसको कहते हैं, ये पेशा भी वहां पे आम होगा। और उसी तरह से पानी के बहाव में वो मछलियों का शिकार करने लगे वहां पे, यानी माहीगिरी आने लगी, है ना। पहले डेयरी फार्मिंग करने लगे, फिर मछलियों का शिकार करते थे, फिर माहीगिरी करने लगे। और ऐसे मौके पर ऐसा भी हुआ कि जिन दरख्तों पर दाने थे वो जमीन पर गिर गए, फिर उनकी कोंपलें फूटने लगे, फिर दरख्तों की पैदावार हो गई। तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ये भी सीख लिया कि दानों को जो है हमें बवाई करके हम फसल को उगा सकते हैं, फसल की कटाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, ज़राअत का तरीका भी आम हो गया, लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत भी करने लगे। तो जब ज़राअत करने लगे तो ये खाना बदोश इंसान जो है एक जगह पर सेटल होगा, एक जगह पर वो रहने लगे, कबीलों की शक्ल में रहने लगे। यही कबीले गांव बनते चले गए, गांव से शहरों का वजूद होगा, है ना। ज़राअत करने के लिए 1 से 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे बहुत से लोग मिलजुल कर रहने लगे। तो ज़राअत का तरीका आम हो गया, अलग अलग किस्म के लोग ज़राअत करने लगे, एक जगह पर बसने लगे, देहात वजूद में आए, गांव वजूद में आए, शहर बनते चले गए। तो इस तरह से इंसान जो है तरक्की करता चला गया। तो ये जमाना जो था, इस मुद्दत को जो है ये तकरीबन 2 मिलियन साल पहले का जमाना कहते हैं, या कदीम तरीन जमाना कहते हैं। तो इस दौर को क्या कहते हैं बच्चों, जहां पे जो है पत्थरों का इस्तेमाल करता था इंसान, पत्थरों के औजार, पत्थरों की हांडियां, बर्तन बनाया गया था, उस जमाने को बच्चों हम कहते हैं पत्थर का जमाना या कदीम हिजरी अहद भी कहते हैं। उस जमाने को हम पत्थर का जमाना कहते हैं। तो ये पत्थर के जमाने को हम जो है 3 हिस्सों में तकसीम करें, यानी इंसान जहां पे पत्थरों का इस्तेमाल करके जमीन की खुदाई करता था, पत्थरों का इस्तेमाल करके शिकार करता था, पत्थरों का इस्तेमाल करके आग जलाया करता था, तो उस जमाने को हम हिजरी अहद कहते हैं। तो इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करें, है ना। कदीम पत्थर का जमाना, दरमियानी पत्थर का जमाना, नए पत्थर का जमाना, या उसको हम अव्वलीन हिजरी अहद, दरमियानी हिजरी अहद और आखिरी हिजरी अहद भी कहते हैं, है ना बच्चों। कौन कौन से है, कदीम पत्थर का जमाना, दरमियानी पत्थर का जमाना, नए पत्थर का जमाना, या अव्वलीन हिजरी अहद, दरमियानी हिजरी अहद और आखिरी हिजरी अहद भी कहते हैं। याद रहेगा कौन से पत्थर के जमाने के 3 अदवार कौन कौन से हैं बच्चों यहाँ पे, कदीम पत्थर का जमाना, दरमियानी पत्थर का जमाना, नए पत्थर का जमाना। वही दरमियानी पत्थर जो था अव्वलीन हिजरी अहद, दरमियानी हिजरी अहद और आखिरी हिजरी अहद। हिजर के मानी ही क्या, पत्थर के, हिजर यानी क्या है, पत्थर है ना। तो चलिए कैसा कैसा था ये जमाना। तो कदीम पत्थर के जमाने में इंसान कैसा था, दरमियानी पत्थर में फिर वो किस तरह से इसको हम और तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता देखते हैं, इस तरह से देखेंगे। तो ये याद रहा, कदीम पत्थर का जमाना, दरमियानी पत्थर का जमाना, नए पत्थर का जमाना, या अव्वलीन हिजरी अहद, दरमियानी हिजरी अहद और आखिरी हिजरी अहद। तो इन 12,000 सालों का जो जमाना था, जो 10,000 साल तक का जमाना था, वो क्या कहलाता है, दरमियानी पत्थर का जमाना कहलाता है ना। उसको हम क्या कहते हैं, दरमियानी पत्थर का जमाना। तो इस अहद में आम तौर पर औजार निहायत ही छोटे होते थे, लेकिन इनको एक नजाकत के साथ में, एक नाजुकी के साथ में उसको पेश करते थे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, औजार बहुत ही नोकीले होते थे, या इसको हम नाजुक औजार भी कहते हैं। नोकीले औजार बनाते थे, बहुत नजाकत के साथ में इन पत्थरों को तराश कर खराश करके वो वहां पे
ان اوزاروں کا استعمال زمین کی کھدائی کے لیے یا یہاں پہ زراعت کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کب بچوں؟ درمیانی پتھر کے زمانے میں۔ اسی طرح اس کے بعد میں جو ہے نئے پتھر کا زمانہ آ جاتا ہے یا جدید ہجری عہد کہتے ہیں۔ تو اس دور کا زمانہ جو ہے 10,000 سال کے بعد میں جو شروع ہوا وہ نئے پتھر کا زمانہ تھا۔ اس دور کے پتھر سے بنے احتیاط یعنی اوزار جو تھے پہلے اوزاروں سے تھوڑا مختلف تھے۔ تو کس طرح ہوتے تھے؟ جیسے کہ آپ کو تصویر میں دکھ رہے ہیں نا، یہ ہتھیار کیا ہوتے تھے؟ چمکدار اور زیادہ دھار والے، پہلے کی بنسبت یعنی قدیم پتھر میں تو وہ موٹے موٹے یعنی پتھروں کا استعمال کرتے تھے۔ پھر جو ہے وہاں پہ درمیانی ہجری عہد میں یا وسطی ہجری عہد میں جو ہے درمیانی پتھر کے زمانے میں اس کو نوکیلے یعنی اس کو ذرا تیز دھار والے بنانے لگے، اور پھر جو ہے نئے پتھر کے زمانے میں آپ کو جیسا تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں نا، اس طرح سے ہتھیاروں کو اور چمکدار اور تیز دھار والے بناتے تھے۔ تو اس دور کے انسان نے پتھروں کو جو ہے اور اس کو جو ہے پتھروں کا استعمال جو ہے چکی کی طرح بھی کرنے لگے، ہے نا، جس طرح آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے، دیکھو ہے نا، اس کو جڑی بوٹیوں کو کوٹنے کے لیے یا پتوں کو کچلنے کے لیے یا اناج اور دانوں کو پیسنے کے لیے بھی جو ہے یہاں پہ پتھروں کا اس طرح سے استعمال کرنے لگے۔ اسی طرح سے اس دور میں جو ہے چند ہانڈیاں اور توا بھی جو ہے ہمیں کھدائی کے درمیان میں اس طرح سے ملے گئے ہیں، جن پہ جو ہے چندے کے اوپر جو ہے اس زمانے کی نقش و نگاری کے مطابق کچھ نقش و نگاری بھی کرتے تھے۔ اور اناج کے لیے وہ بڑے بڑے اس طرح کے برتن کا جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دکھ رہا ہے نا، اس طرح کے بڑے بڑے برتن جو اناج کا ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اپنی غذا میں زیادہ تر وہ چاول، گیہوں، بارلی اور دیگر اناجوں کو بھی پکایا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ جو ہے جو درختوں کا پتا یا درختوں کی چھال پہنتے نا، کپڑا بننے کا بھی علم انہوں نے سیکھ لے۔ اس طرح سے انسان ترقی کرتے کرتے وہ انسان جو کہ قدرت کے دامن میں زندگی گزارتا تھا، درختوں کی چھاؤں میں رہتا تھا، جنگلات میں رہتا تھا، درختوں کے کھوکھلوں میں رہتا تھا، وہ انسان آج دیکھو RCC بنگلور میں رہ رہا ہے، خلا میں سفر کر رہا ہے نا، دوسرے سیاروں پر پہنچ گیا۔ تو اس طرح سے انسان ترقی کرتے 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 آج کے زمانے کا ایک نیا ماڈرن انسان آپ لوگوں کی طرح بن گیا ہے نا بچوں۔ تو یہ تھا ہندوستان کی سیاسی تقسیم، ہندوستان کی جغرافیائی تقسیم اور ماقبل تاریخ زمانہ ہے نا۔ تو چلو بچوں اب لیسن سمجھ میں آیا ہے نا، تو لیسن کے دوران جتنے میں سوالات پوچھی وہ سوالات بھی اس کے سوالات جوابات بھی لکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ ہوم ورک کے طور پر چند ایک کوشچنز دے رہی ہوں، چند ایک سوالات دے رہی ہوں، ان سوالات کے جوابات بھی لکھیے، پوائنٹس بھی پورے لکھیے، سوالات کے جوابات بھی لکھیے۔ تو بچوں آپ کے لیے پہلا سوال ہے یہاں پہ، ہندوستان کا محل وقوع بیان کرو، یعنی ہندوستان کا رقبہ، اس کی وسعت، اس کی لمبائی، چوڑائی، یہ تمام یہاں پہ آپ کو لکھنا ہو، تھوڑا وضاحت کے ساتھ لکھیے، پوائنٹ وائز لکھیے، جس طرح سے اس ویڈیو میں آپ کو پورے پوائنٹس مل جائیں گے، جیسے میں ایکسپلین کر دے گی نا، وہی اہم نکات ہے اس کو یہاں پہ لکھیے۔ ہندوستان کا محل وقوع بیان کرو۔ تو بچوں آپ کے لیے دوسرا سوال ہے یہاں پہ، ہندوستان کی جغرافیائی خصوصیات ہے نا، ہندوستان کو جغرافیائی لحاظ سے 4 حصوں میں جو تقسیم کرے ہیں، ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ، گنگا کے زرخیز میدان یا شمالی ہندوستان کے زرخیز میدان، جزیرہ نما ہند کی سطح مرتفع، ساحلی میدان اور جزائر۔ تو ان کی خصوصیات کے بارے میں ایک ایک 2 جملے بھی آپ لکھیے، اس کو ہم کہتے ہیں ہندوستان کے جغرافیائی خصوصیات۔ اسی طرح سے تیسرا سوال ہے یہاں پہ، ما قبل تاریخ زمانے سے کیا مراد ہے، اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نا، لکھیں گے نا کون کون سے ہیں۔ ما قبل تاریخ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ زمانہ جس کی کوئی تحریری شواہد موجود نہ ہو یا رسم الخط کے وجود میں آنے سے پہلے کا زمانہ ما قبل تاریخ زمانہ کہلاتا ہے۔ اس کے 3 حصے، قدیم ہجری عہد، درمیانی ہجری عہد اور جدید ہجری عہد، یا قدیم پتھر کا زمانہ، درمیانی پتھر کا زمانہ، نئے پتھر کا زمانہ۔ تو اسی طرح سے اگلا کوشچن آپ کے لیے جو ہے یہاں پہ، ما قبل تاریخ زمانے کا انسان کیسے زندگی بسر کرتا تھا، خانہ بدوش کی زندگی، کہاں کہاں رہتا تھا، یہ آپ کو لکھنا۔ اور ایک آخری سوال، ہجری عہد سے کیا مراد ہے، 3 ہجری ادوار کون کون سے ہیں، یہ بھی یہاں پہ لکھیے۔ تو بچوں یہ تھا آج کا آپ کا ہوم ورک۔ تو اہم نکات لکھیے، 1 مارک کے کوشچن آنسر لکھیے، یہ ہوم ورک میں آنے والے تمام سوالات بھی لکھیے، اور ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی پورا خیال رکھیے۔ چلیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔